sunrise, sunrise, sunrise from Istanbul. जी हाँ, ये है सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, टर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल और बॉस्फोरस के किनारे से एक बहुत ही खूबसूरत सुबह में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मेरा लाइव ऑर्केस्ट्रा है, इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। अब तक तो मेरा ख्याल है आपको इनके नाम याद हो ही गए होंगे। हमारी लीड सिंगर जोरैन, पाशा ऑन द गिटार, इस्माइल एंड अशरफ। लेकिन हम अपनी शेफ को कैसे भूल सकते हैं? ऑफ कोर्स मरियम। रोज की तरह आज भी हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है, a lot of segments। और वन थिंग स्पेशल इज कि आज हमारे पास आपके लिए एक नहीं बल्कि दो सेलिब्रिटी गेस्ट्स हैं। हमने स्पेशली पाकिस्तान से वी हैव फ्लोन देम ओवर जस्ट फॉर यू। और द रेगुलर सेगमेंट्स हमारे पास पाकिस्तान, विल गो टू पाकिस्तान, जहाँ पे सदफ होंगी, बॉक्स ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम साथ साथ आपको बताएंगे। लेकिन पहले वो खवातीन जो अपने कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठी हुई हैं ये जानने के लिए कि आज क्या पकाया जाए, हम उनकी कुछ मदद करते हैं। चलते हैं मरियम के पास और देखते हैं वो आज क्या पका रही हैं। हेलो मरियम, हाउ आर यू? Hello Maria, thank you. Oh, so what is happening? What are you cooking today? We have boiled chicken one today, but not a boring one. What chicken? Boiled. Boiled chicken, ubla hua chicken. Is it going to be tasty? Yeah, be sure. Because first we will fry our chicken and then we will boil, but not just in the water. We have a water here which have herbs, some black pepper, ginger, garlic, many things, and some curry. What is it called? What is the dish called? Boiled chicken. Boiled chicken. नाम तो बहुत let me just translate it for the audience. मरियम कह रही हैं कि ये बॉइल्ड चिकन है और इसको बॉइल्ड चिकन ही कहते हैं। अब बॉइल्ड चिकन, उबला हुआ चिकन तो बहुत बोरिंग किस्म की डिश लगती है, बट मरियम इज सेइंग कि ये बहुत मजे की डिश है। तो पहले इसको मेरे ख्याल में ये यू गोइंग टू फ्राई इट। Yes, फ्राई करेंगी और उसके बाद इसको बॉइल करेंगी इन हर्ब्स। व्हाट काइंड ऑफ हर्ब्स डू यू हैव हियर? Let me show you. We have daphnes. Okay. And we have some parsley. Okay. And some fresh thyme. We have garlic, some ginger, some black peppers we have. Also, we will put a little bit honey inside on it. Honey, ये सारी herbs। और जो चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है उसका ये ऑल्टरनेट भी बताएंगी कि अगर कोई herb या कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ अवेलेबल है वहाँ नहीं है तो उसकी जगह क्या चीज़ यूज हो सकती है इसमें। And you're putting honey in it as well. Yes. Oh, and okay. then we will put some vegetables inside. Vegetables, ये तो गाजर है, this is all right, ये peas, okay, and corn. Yeah. ठीक है। और what After else? that, we have a second dish. We will make couscous. Couscous, हाँ ये तो मैंने सुना हुआ है। Yeah, I know about that. Yeah. It's a kind of pasta, you know. Pasta. Couscous is a kind of pasta. We will cook couscous with this tasty soak, and then we will add some curry inside on it. What will you add? Curry. Curry. Okay. Powdered curry. And then we will have a dessert. I already prepared the dessert's base, as you see, but it's so easy. Just yogurt, cream, biscuits, and some coffee. That's all. What is it called? Coffee parfait. Easy coffee parfait. Coffee parfait. Okay. And how do you make it? What are the ingredients? Yogurt. Cream. Sugar. Chini. Black biscuits. Cacao biscuits. Can I see? Sure. You can taste also. Yeah? Biscuit. And a small cup of coffee. A small cup of coffee. तो थोड़ी सी कॉफी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. That's all. And when I put them to my glasses, I will freeze them a little bit, like 2 hours, and then it will be ready to eat. Oh, मरियम से ये तो पूछते हैं कि इस डिश को बनने में टाइम कितना लगेगा? So how long will it take to? It's approximately 25 minutes to boil for the chicken, and then for the couscous it takes just 15 minutes. All right. So ये चिकन बनाने में 25 minutes, 25 मिनट लगेंगे और couscous 15 मिनट में तैयार हो जाएगा. And what about the dessert? Just 5 minutes. Just 5 minutes? To mix, and then you have to put it in the refrigerator for 1 hour to cool.
अच्छा, आप इसको मिक्स करते हैं तो उसमें 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उसके बाद इसको फ्रीजर में रख के सेट करना पड़ेगा. दैट विल टेक 2 आवर्स. उसमें 2 घंटे लगेंगे. तो ये तो दिस इज वेरी क्विक कुकिंग. Yeah, exactly. Wow. All right. You get back to work. Sure. All right. I will come back here. Okay. I'll I come will be back waiting to you. for you. Yeah. So जब तक ये खाना बनाती हैं, हम जुरैन से पूछते हैं कि ये आज हमें क्या सुना रही हैं. So, what do you have for us? Yes, today we're gonna play a Black Sea song. What song? Black Sea, you know. Black Sea. Yeah. Black Sea. Acha. Yeah, and of course it's about love because you know in Turkey. जुरैन, there's so much love there. Yes. Yeah, and- जुरैन हमें हमेशा लव सॉन्ग्स सुनाती हैं, चाहे वो ब्लैक सी के बारे में हो या बॉस्फोरस के बारे में हो. Yeah. Okay. It's a great. Are you in love? Are you in love Yeah, with of somebody? course. I will marry अच्छा, soon. इसीलिए. Oh, she's getting married. इनकी शादी हो रही है. So that is why all the love songs. अच्छा, And you know, it's a great style to express ourselves. You know, with songs, yes. everything. So what is the every song about? emotion. About Black Sea? You know, we can say it's about a man fall in love with a girl, but you know, he is telling something, but far away. Oh, okay. Yeah. So ये जो गाना ये हमें सुनाएंगे, is it in Turkish? Yes, it's This in one is Turkish. in Turkish. Yeah. ये गाना है एक ऐसे आदमी के बारे में who has fallen in love with a woman, और वो अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर रहा है. म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती. तो अगर आपको अल्फाज समझ नहीं भी आते या पोइट्री समझ नहीं भी आती, तो आई थिंक जो म्यूजिक से जो इमोशन आप तक ट्रांसलेट होता है, वो आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग, हर इंसान समझ सकता है. एंड जुरैन हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस. इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि आई डोंट थिंक सो कि अगर पोइट्री ना भी समझ आए तो डजंट मैटर. इसके अलावा व्हाट डू यू हैव फॉर अस? What else? Some surprises, maybe some jazz standards. Really? In English. In English. अच्छा, चलिए इनके पास हमारे लिए एक और भी कोई सरप्राइज है, वो हम बाद में देखेंगे क्या है. ओके, ऑलराइट. तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे अगले सेगमेंट में हमारे 2 बहुत ही वेल नोन सेलिब्रिटी गेस्ट्स हैं, जिनको हमने स्पेशली आपके लिए पाकिस्तान से बुलाया है. ये दोनों शख्सियात शोबिज़ की दुनिया में अपना अपना मकाम रखती हैं. इनकी पर्सनालिटी को और इन लोगों को आप बहुत सराहते हैं, इनके काम को सराहते हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं. ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हेन वी कम बैक हमारे साथ होंगे शमून अब्बासी और मिसबा खालिद. सो डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक. जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक. After the break, as I promised, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के उस पार इस पार हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे. जी, शमून is here and मिसबा is also here. आपका सफर कैसा रहा? कैसा लग रहा है आपको टर्की पाकिस्तान से इधर आना? It's beautiful. It's beautiful. एक तो वेदर बहुत अच्छा है भाई. It is so lovely to just be sitting here in this beautiful environment. I think it's wonderful. ठंडी ठंडी हवा. ब्रेक से पहले कि कराची जाती हमें याद आएगा ये सारा मौसम यहाँ. और उसके बाद यू आर गोइंग, आप तो जा रहे हैं गर्मी में शूट करने थाईलैंड, तो आपको हम बहुत याद आएंगे. आई एम श्योर. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू कि आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए एंड यू आर हियर. सो बताइए, बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है, वो बातें जो आप नहीं बताना चाहते वो सारी पूछनी है. नो आई एम जस्ट जोकिंग. सारी बातें तुम नहीं बताते हो. मेरी तो पता चल गई है काफी. जो नहीं बताना चाहते वो पहले ही पता चल गई सबको, है ना. नहीं, नथिंग लाइक दैट. वी आर जस्ट हैप्पी. हम तो इस बात पे खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं. मरियम बहुत मजे का वो बॉइल्ड चिकन बना रही है. मरियम मेकिंग दिस बॉइल्ड चिकन, और ये भी आपको हम ट्राई कराएंगे. एंड जुरैन और हमारा जो लाइव ऑर्केस्ट्रा है ये आपको अच्छा म्यूजिक सुनाएगा. जुरैन also sings in उर्दू. अच्छा, आपको उर्दू में भी most probably she will sing for you. तो फॉरन बुक कर लें हम प्लेस के लिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए फॉरन बुक कर लें. बिल्कुल आप ये कर लें.
है ना, इनको फौरन बुक कर ले। तो शमून, किसी एक्टिंग चैलेंज में यू वर देयर, व्हाट्स दैट स्टोरी? स्टोरी ये थी कि मुझे कुछ इनविटेशन कार्ड्स मिले, तो उस एक्टिंग चैलेंज को मैंने जाके लाइव वहाँ देखा हॉल में। तो मेरे साथ कजिन्स थी। ये बहुत पहले की बात? ये बहुत पहले की बात है। दिस इज अराउंड 97, ओके, 98। तो हम जाके बैठे हुए देख रहे, तो माय कजिन्स आस्क्ड मी कि मुझे साथ ले चलो। तो मैंने नायला से और गालिब से ऑटोग्राफ लेना। मैंने कहा मैं नहीं जाता, मुझे शर्म आती है, ये मैं तुम लोग चले जाओ। अच्छा, आती है? हाँ, मतलब ऑटोग्राफ लेते हुए बहुत आती है, शर्म आती है। ओके, मुझे ये होता था कि जी ऑटोग्राफ किसी से लेना अजीब सा लगता है। 12 वो लड़कियां थी तो मैं ले गया उनको। तो वहाँ लाइन में हम खड़े हुए थे, तो वो नायला गोज लाइक आप संडे को आ जाए। मैंने कहा जी संडे को क्यों आ जाए, अभी दे दे ऑटोग्राफ। कहती नहीं आपने पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं करना, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। एंड शी गोज लाइक यू शुड एक्ट। मैंने कहा जी आई डोंट नो हाउ टू एक्ट। तो उन्होंने कहा कम टू द एकेडमी एंड स्टार्ट डूइंग इट। तो बस फिर मैं आई जॉइंड द एकेडमी। फिर मैं क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, देन आई बिकेम द फाइनलिस्ट। एंड इट वाज ऑल पब्लिक की पब्लिक ने मुझे पसंद किया वहाँ, बिकॉज उस जमाने में जजेस का सिलसिला नहीं होता था। अच्छा, दे यूज्ड टू बी पब्लिक क्लैप करती थी। तो अच्छा, पब्लिक खुद फैसला करती थी, उनकी जजमेंट होती थी। काश ऐसा पॉलिटिक्स में भी हो जाए ना कि पब्लिक फैसला कर सके, है ना? ये मैंने मिसबा के दिल की बात की है, बिकॉज मिसबा ना सिर्फ शी इज यू नो पार्ट ऑफ शोबिज, बट शी इज अ वेरी कॉन्शियस सिटीजन भी है और पॉलिटिक्स में भी बहुत इन्वॉल्व रहती है। लेकिन आपको तो घसीट के लाया गया था शायद शोबिज में। शोबिज में नहीं घसीट के तो कोई नहीं लाया था। नहीं, आई मीन लाइक यू आई वाज जस्ट अटेंडिंग थिंग में देख, मैं भी इसी तरह की तरह गई थी देखने के लिए। तो बजिया थी, तो मुस्कुरा के मैं बजिया को देख रही थी। देखा, मुस्कुराहट काम आती है, बहुत काम आती है। एंड शी जस्ट केम आउट, शी सेड कि आ जाओ। मैंने कहा मतलब हेलो, कहाँ आ जाऊँ? कहती बिकॉज़ आई वाज ट्राइंग टू रिप्लेस समबडी, सो दे सेड कि तुम आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं मतलब आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट, आई सेड मैं क्या करूंगी? उन्होंने कहा नहीं, देन दे टुक मी अपस्टेयर्स एंड दे शोड मी एंड दे जस्ट गॉट मी इन। तो मैं किसको रिप्लेस किया था आपने? मैं बता ना पूछो बेचारी, आज तक मुझे भी ढूंढ रही होगी उस वक्त। आप ऐसे सवाल करेंगे तो आपसे भी ऐसे सवाल आगे देखिए होता है। अच्छा, एक्टिंग शमून, एक्टिंग जिंदगी में काम आई, पर्सनल लाइफ में? हाँ जी, बहुत काम आई, बड़ी बड़ी जगहों पे काम आई। लेकिन ये नहीं हुआ कि कहा जी आप तो एक्टर हैं तो आप तो ऐसी हाँ जी, एक्टिंग ये भी इल्जाम लगता है हमेशा कि ये तो आपके बड़े रियल इमोशंस को भी चैलेंज कर दिया जाता है कि झूठ मत बोलो, यू आर एक्टिंग राइट नाउ। उस ड्रामे में भी तुमने इसी तरह उस हीरोइन को ये कहा था। नहीं, जो कुछ मैं ड्रामों में हीरोइंस को कहता हूँ ना, वो जनरली अपनी आम लाइफ में नहीं कह पाता, बिकॉज ड्रामों में मैं अक्सर नेगेटिव आदमी होता हूँ। बट अपनी पर्सनल लाइफ में बंदा नेगेटिव नहीं होता। तो या बट वो इट्स हार्ड टू बिलीव दैट आई एम अ रोमांटिक पर्सन। Are you? I am. I mean, this is what I hear. अच्छा, कुछ ज्यादा ही यानी कि सही, मतलब एक खास लेवल। Okay, so you act और फिर डायरेक्शन की तरफ भी, और अब फिल्म्स बन रही हैं तो फिल्मों में भी, so और फोटोग्राफी, I didn't know. Yes. Photography is my passion. मैंने फोटोग्राफी मेरे ख्याल में जब शुरू कर दी थी when I was 16-17. अच्छा। And I had all sort of cameras, और मैंने बहुत दुनिया में की, मतलब it's not just in Pakistan. मैं जहाँ गया, but I never made it a profession. फिर मुझे लगा कि कुछ चीजों को हॉबी भी रखनी चाहिए ना। You can't sell everything that you know. अब आपको स्विमिंग आती हो और अब आप उसको भी सेल करना शुरू कर दें, तो कुछ चीजें जो है आपको मेरे ख्याल में पर्सनल होनी चाहिए। तो फोटोग्राफी, म्यूजिक, ये दो चीजें हैं जो कि they're very close to my heart. And मैं singing, yes. And मिसबा, आप एक्टिंग से फिर डायरेक्शन की तरफ क्या था? क्यों उसी वक्त हो गया था? बदला लेना है एक्टर से, ये ऐसा क्यों करते हैं? No, but how was the switch? बेसिकली उसी वक्त था when I went to do my first shot, तो वो ऊपर ले गए थे कंट्रोल रूम जो पीटीवी का होता था ना, and it was like I remember Zahir Khan was sitting there. He was one of the best directors of his time, and उनका मतलब पूरा monitors लगे हुए थे सब कुछ, and I entered that place and I knew I didn't want to be an actor, I wanted to be a director. You wanted to play with the switches. I wanted to play with the switches and I wanted to control. I wanted to like sort of throw my weight around a bit, literally. Misbah is a good director. मैंने इनके डायरेक्शन में काम किया and I really enjoyed. Actually हम दोनों साथ ही थे। हाँ, याद आया। No, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था काम करने का, and I hope के दोबारा भी मिले। So पहला जो एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो याद है कि मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, और मैंने बटरफ्लाइज इन द टमी एंड ऑल दैट, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि
क्या? How was your first experience कैमरे के सामने? डर बहुत लगता था because you were so scared कि आपको गड़बड़ कर दोगे. I remember जो मेरी मदर बनी हुई थी, अजरा शिरवानी थी, she's passed away now. She was sitting there and her hands were like shaking. And I was standing in the wings and I was looking at her. मैं सोच रही थी कि ये घबरा रही हैं जो इतनी मतलब अरसे से काम कर रही है, तो अगर मैं गड़बड़ भी कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So I went in and just sort of मतलब हो गया. जब हो गया तो उन्होंने कहा कट हो गया और सही हो गया, ओके हो गया. जिंदगी में भी एक्टिंग करते रहते तो स्टेज पे भी कर दी एक्टिंग आपने. आई थिंक कि जो एक्टर्स होते हैं वो बेहतर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर होते हैं बिकॉज़ उनको they understand both sides actually ना, तो वो मुझे लगता है. और उसके it's vice versa also. जो अच्छे डायरेक्टर्स होंगे, अच्छे डायरेक्टर्स भी अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं क्योंकि वो टेक्निकलिटीज को समझते हैं एंड प्रोडक्शन में वो बहुत उनके स्किल्स काम आते हैं जब वो एक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टाइम को और चीज़ों को वो बड़ा स्केल करना जानते हैं. they don't waste producers टाइम और डायरेक्टर्स को वो तंग नहीं करते उस तरह. इफ यू वर गिवन अ चॉइस, जो आपके हैं ये फोटोग्राफी हो गया, ये बीइंग अ फिल्म स्टार और एन एक्टर, डायरेक्शन, अगर आपको चूज करना पड़े तो आप किस चीज को चूज करेंगे? Well, I don't know. I love direction because मुझे लगता है कि whenever I bring some subject, वो जब पेपर से लेकर स्क्रीन तक जाता है तो वो जो एक ऑनर आपको फील होता है ना कि आपने खुद लिखा, you came up with the idea and then you directed a lot of good actors, वो एक अच्छी चीज है. और क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? I think constructive criticism is always welcome because आप कभी improve नहीं करोगे जब तक कोई आपको बताएगा नहीं. तो आपको पता भी होता है कि कौन constructively आपको criticize कर रहा है. ये मुझे बताइए कि कैसे पता चलता है? पता चल जाता है. देखिए वो अंदाज होता है और कुछ लोगों की बड़ी इनवैलिड सी क्रिटिसिज्म होती है which is not even technical. जैसे इन्होंने कहा कि वो एक कंस्ट्रक्टिव एक तरीके से आप कुछ कह रहे होते हैं ना कि यार ये बेहतर हो सकता था, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट. एक होता है कि जी आप करते ही बुरा है, आपको आता ही नहीं है ना, तो वो बंदा कहता है यार ये कैसे स्टेटमेंट है ना. अच्छा, दूसरा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म की एक परसेंटेज होती है. आई मीन 80% पीपल और प्रॉब्ली द पॉपुलेशन आपको पसंद करती है, दैट्स व्हाई यू आर समवेयर. अगर 20% आपको नहीं पसंद करती है एंड दे हैव थिंग्स टू से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट, क्योंकि वो एक तो माइनॉरिटीज में चले गए और अगर वो माइनॉरिटीज है भी तो उसमें से भी हाफ जो होंगे वो कंस्ट्रक्टिव होंगे और हाफ इनवैलिड होंगे. तो 10% बेसिकली आपकी है, उसका इतना बुरा नहीं मानना है. ऊपर से आप इतने आई थिंक एक स्टेज आ जाती है कि जब आप सब चीज एक्सेप्ट कर लेते हो, एक स्टेज आती है कि ठीक है आपको पता है, ठीक हो जाता है, ठीक है ना, आपको पता है आप क्या कर रहे हो. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर डूइंग, इट्स फाइन. आई मीन लाइक मे बी समथिंग इफ यू have a good attitude. Okay, भाई ठीक है जी सर, उसने मुझे कुछ कह दिया, अच्छा उसने सही बात की होगी. Like वो team work होता है. Even with the actors, there are certain directors जो कहते हैं जी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही करना है. It's not that. You are my actor. You might have conceived अच्छा आइडिया मिल सकता है जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए. Exactly. So तो पूरा प्रोजेक्ट सबका प्रोजेक्ट होता है. और सबको कंफर्टेबल होके आई थिंक काम करना चाहिए. मुझे लगता है इनसिक्योर डायरेक्टर्स एंड इनसिक्योर जो लोग होते हैं वो नहीं सुनना चाहते कोई कुछ भी बात ना, वो थिंक है वो अपने बॉक्स में ठीक है. बिल्कुल सही. आई थिंक जो लोग थोड़े लिबरल होते हैं दिमागी तौर पे उस मामले में, वो बूम ऑपरेटर से भी अपना कोई मशवरा ले लेंगे. स्पॉट बॉय आगे कान में कुछ कह देता है. वो हमारी ऑडियंस है. अच्छा, अब इसके बाद हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे. हम एक ब्रेक ले लेते हैं. जुरैन, वी वांट टू टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. आई होप आप लोग मेरे साथ बोर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे. It's a lovely, lovely moment. अच्छा, बिफोर वी वेंट टू द सेगमेंट हमारी एक वो बात हो रही थी अबाउट इनसिक्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस. तो मेरे ख्याल में हर इंसान में होते हैं. बिल्कुल होते हैं. हम उनको छुपाते हैं. इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स असल में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. सही बात है. जिंदगी के सफर में आप में एज अ मैन क्या चेंजेस आए, किस फेजेस से गुजरे? अगर मैं अपने कैरियर के हवाले से देखूं तो ऐसा लगता था जैसे दूसरे लोग आपको बहुत इनसिक्योर फील करवाते हैं, आपको मेजर करते हैं और आपके जो फैसले होते हैं उस वक्त एट अ पर्टिकुलर टाइम जब आपने कुछ शायद नहीं किया हुआ होता, तो वो उसमें ज़्यादा परसेंटेज उन लोगों की होती है जो कह रहे होते हैं कि जी गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो. तो आपकी बिलीव्स में ऊपर नीचे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है. लेकिन कॉन्फिडेंस में आती है. आपको लगता है जैसे यू एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम बिहाइंड समथिंग एंड
आप पता नहीं जब कुछ कर पाएंगे तो कब तक होगा, और फिर ज़ाहिर टाइम गुजर रहा होता है। और यूथ का एक खास टाइम होता है जिसमें पेरेंट्स बड़े कनेक्ट होते हैं आपके साथ, एंड दे वांट यू टू एक्चुअली कम अप विद समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड लॉजिकल एंड जिसमें फ्यूचर का बड़ा इन्वॉल्व, डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो उस वक्त मुझे फील होता था कि हाँ है, लेकिन कॉन्स्टेंसी मुझे लगता है कि आप बस एक चीज पे जिस पे लगे रहे ना, आप लगे रहे तो कंसिस्टेंटली लगे रहे, बस वो बड़ा जरूरी है। और अपने अंदर का बिलीफ, उसमें लॉस और फायदा और ये सब चीजें आप खुद जिम्मेदार बन जाए उस चीज के कि जी मैं हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करें। जी, हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने जो सवाल किया मेरा थोड़ा सा टेक उस पर थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने इनसिक्योरिटीज की बात की है, तो मुझे इनसिक्योरिटीज में ये लगता है बीइंग अ डायरेक्टर यू आल्सो हैव टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल, बिकॉज वो होता है कि आपको अपने एक्टर्स का इलाज भी करना पड़ता है, साथ साथ उनके सुनना भी पड़ता है, उनकी बातें भी सुननी पड़ती है, उनको कॉन्फिडेंस भी देना पड़ता है, टाइम्स दैट यू एंड हैंडल भी डिफरेंट एक्टर्स को डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। सम पीपल डांट दोगे तो ठीक हो जाएंगे, सम पीपल आर टू सेंसिटिव, यू हैव टू सिट विद देम एंड टेल देम एंड एंड आई थिंक द ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट ये जो इनसिक्योरिटीज हम हर इंसान अपने अंदर लेके आता है, दैट इज व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। बिकॉज जितनी आप अंदर से इनसिक्योर और इतने सेंसिटिव होगे, दैट इज how you will understand the character that you're playing. Yeah. So वो बड़ा एक मजा आता है उसमें, those little वो जो एक नीचे layers जो है ना, उसमें बड़ा मजा linear नहीं है, it's like it has. और मारिया मुझे लगता है कि being overconfident is a killer. It's ugly actually. मुझे लगता है कि ये जो हमारे मुल्क में एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ मैटर्स में हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इट्स लाइक हमारे हाथ में सारी डोरें हैं। हम एक बेसिक लॉजिक भूल जाते हैं, देयर इज गॉड अप देयर, ठीक है, जो किसी भी बहुत बड़े डोर को भी काट सकता है एक सेकंड के अंदर। और दूसरा ये कि हम ये भी नहीं सोचते कि देयर इज मोर, हम यहीं पे इतने ओवर कॉन्फिडेंट, देयर इज ऑलवेज मोर एंड देयर इज ह्यूमिलिटी। यू सी वही होता है कि जब से पहले आप शुक्र करते हो ना, व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड, एंड देन व्हाटएवर यू गेट, इफ यू आर हम्बल अबाउट इट, कि मुझे ग्राउंडेड है, मतलब ग्राउंडेड है कि भी मुझे मिला एंड यू वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और मेरे हिस्से का ये है, और किसी वक्त भी जा सकता है, और किसी वक्त भी जा सकता है, एक सेकंड नहीं लगता कि आपकी जो फेम है वो है। सो इफ यू नो दैट एंड यू गो एंड यू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स एंड यू लेट गो ऑफ द थिंग बैड, कोई बात नहीं, आई थिंक यू ग्रो, यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दैट। और बड़ा वो एक आई थिंक वो बच्चों के थोड़ा सा मैं करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमारे यहाँ जो चीजें हमें बच्चों के ऊपर फोकस नहीं, जो सारी इनसिक्योरिटीज आती है उसी वक्त से शुरू होती है, घर की लाइफ से शुरू होती है। तो वो जो चीज हम आगे पास ऑन कर देते हैं, वो हम अपने घर से लेके आते हैं। तो बेसिकली माँ बाप का इलाज होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं बिल्कुल नहीं, दैट इज ट्रू, क्योंकि फाउंडेशन वही होती है। और आज जो हम बहुत सारे कंप्लेन करते हैं या बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग नहीं हैं, वो इसीलिए है कि उनकी फाउंडेशन जो है वो सही तरीके से लेड नहीं है। आपको क्या लगता है हमारा जो पाकिस्तानी एक आदमी है उसमें क्या कमियां हैं और कैसा होना चाहिए, उसको कैसे सोच में कैसे तब्दीली आ सकती है, या किस चीज में वो अच्छे हैं और किस चीज की कमी है, और उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? The same question for you, for women, I would say. And for men, I can. Yeah, absolutely. Then you should talk about men. नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मतलब कि एक्चुअली तो मैं तो माँ जो है वो बनाती है. She is the actually the core of the family. जितना भी है, जो भी हमारा बंदा जो बन के आता है, जो पाकिस्तानी बंदा का जो हम सामने आते हैं, इट इज बिकॉज वही होता है कि कई दफा माँ कहती हैं कि भाई बेटे को कि ये बेटे को दे दो, भाई आ रहा है भाई के लिए चाय बना दो, भाई आ रहा है भाई के लिए कर दो. मतलब हमारा ये है, तो भाई आता है अपना अच्छा मेरे लिए पानी लेके और मेरे लिए बहन. ये तो डिफरेंस मैंने देखा है. अगर आप वडेरों की ड्रामे बनाते हैं या हमारा एक कल्चर है, मैं उसको बुरा या अच्छा नहीं कह रही हूँ, बट वो पार्टिसिपेशन आपको नहीं लगता कि उतनी नहीं है? मुझे लगता है कि ये एक हेरिटेज की तरह ना हम आगे बढ़ाते भी जा रहे हैं. अब फाइनली माशाल्लाह इन द लास्ट चेंज आ रहा है. आई कैन सी अब लास्ट 2 डिकेड्स में मैंने देखा है कि अब जो यूथ है वो दे डोंट वांट टू फॉलो दोज फ्यूडल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल and they want to be more global, they want to be more humble and human. पार्टिसिपेशन ज्यादा है अपने पार्टनर, फीमेल पार्टनर के साथ लाइफ में, चाहे वो बच्चों को बड़ा करना है या उनको स्कूल छोड़ना है. आई फील कि वो जो पार्टिसिपेशन है जो एक आदमी की सिर्फ
ब्रेड अर्नर के अलावा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी खवातीन भी आजकल उतना ही कर रही हैं, तो वो पार्टिसिपेशन आई थिंक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बाप सिर्फ आके और वो सुबह चला ना जाए, उसकी लाइफ के अंदर टाइम देना, टाइम इज इम्पोर्टेंट। मारिया, माँ को भी जरूरी है ना। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ ना कि मतलब कि जैसे ये है बच्चा है तो माँ कहती है ना कि लाइक आई टेल माय सन कि बेटा यू नो यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिस्टर, सो ही नोज फ्रॉम हिज थिंग। और वो मुझे किसी ने कहा था कि बच्चों को माँ के लिए पानी ला दो या वो कर दो, तो मतलब वो चीजें होती है कि बहन के लिए कुछ कर रहे हो तो उनके दिल में ना ये खुद डालना पड़ेगा, डालना पड़ता है। दिस इज द जॉब। यू हैव अ डॉटर, हैज दैट चेंज यू? आपको आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में, सोच में चेंज आया है? बिल्कुल आया है। और मैं आज से नहीं, हमेशा से ये सोचता था कि आई वांट टू बी हर बेस्ट फ्रेंड। मैं चाहता हूँ कि 90% ऑफ हर मैटर्स जो वो जाके बाहर किसी और मेल फैक्टर में ढूंढे या पूछे कि यार ये तो मैं डिस्कस ही नहीं कर सकती अपने फादर से। मैंने अपनी बेटी के साथ बिल्कुल वो रिलेशन नहीं रखा हुआ। एक्चुअली वो अपनी माँ से नहीं डिस्कस करती, बट जब वो बहुत इमोशनल भी हो जाती है, गुस्सा हो, खुशी हो, शी इज लाइक ओपन टू मी। That is so good. तो वो बोल देती है जो बोलना होता है। वो कभी कभी वो रोते हुए बहुत उल्टी सीधे अल्फाज भी इस्तेमाल करती थी। मैं बाद में डांटता हूँ कि तुमने यूं भी बोला, ये वर्ड तुम्हें नहीं। कहती है आई एम सॉरी बाबा, बट यू नो हाउ आई फेल्ट। आई वाज लाइक इमोशंस की बात हो रही है तो फिर मेरा ख्याल है जरैन से गाने सुन लेते हैं। Yeah, there should be a song. बहुत ओवरवेलमिंग इमोशन हो गया। जरैन, we want a song. What are you singing? The Black Sea song? Yes. Love song. Love song. çorabı Amura başa ister skota Amura lase Paracık verirse O zaman kaptan keyifler tamam
you. Music की तो कोई, I mean like there's no you don't have to understand the limitation, words, किसी I'd भी love चीज़। to. तो मिसबा फिर आप अपने साउंड ट्रैक करवा रही बिल्कुल, हैं। मैं तो पूरा देख रही हूँ, मैं तो ब्लू स्काई, वो everything, it's so With beautiful. Shaboon It's like- dancing, है ना? And तो फिल्मों के लिए फिर वो डांस वास have you किए डांस किया है ना, उसमें भी तो किया था, वार में भी तो हाँ किया जी, था। बार में भी किया था. It was like salsa, It was not the nice. typical It dance. was nice. He was so good in War. I was think he very was good. brilliant. I Thank thought he you. was Thank you really, so really much. brilliant. हिदायतकार के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर आप किस किस्म की स्क्रिप्ट्स यू वांट टू पिक अप, जो हमारी लिमिटेशन है विद चैनल्स एंड ऑल, और खास तौर पे जो हमें कहते रहते हैं कि रोना धोना, वुमेन्स कैरेक्टर रिग्रेसिव, मैं तो बहुत उससे खिलाफ हूँ. मैं तो फटे हो हाउ डू यू जाते सी हैं. अ पाकिस्तानी वुमन, वो बताएं ना I see मुझे। a Pakistani woman as a very strong woman at the end of the day. You see, the thing is कि मतलब हमें इतना potential है, but the thing is journey. I want to show a woman's journey. हर किसी की अपनी अपनी journey होती है. पर मेरा सिर्फ ये होता है कि at the end जब वो खत्म होते हैं, ठीक है जी, वो भी थप्पड़ भी मारते हैं, ये भी करते हैं, जो कुछ होता है. But at the end the woman has to come out strong. And that is really really important because जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे ना, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा. And our women have to learn this क्योंकि आप इतने डिपेंडेंट हो डर के, पहले बाप से, फिर मियाँ से, फिर वो. This has to change and television is such a strong medium. बिल्कुल है कि हमारे ऊपर ये एक जिम्मेदारी है कि हम सही बात जो है ना वो पहुंचाए, एंटरटेनमेंट में पहुंचाए जरूर उसको. वो डिपेंड्स हाउ वी प्रेजेंट इट. सबलिमिनल जो हम कहते हैं कि मैसेज जरूर जाना चाहिए. मैसेज जरूर जाना चाहिए. और मारिया, मैं स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ना मैं हैप्पी भी देखना चाहता हूँ अपनी Happy. स्क्रीन पे. अपनी खवातीन को वो नहीं हो सकता. हैप्पी नहीं दिखाते. वो रेटिंग नहीं आएगी. ये रेटिंग का क्या चक्कर मैं है? आपको बताऊं, देखें जी, जो रेटिंग्स के इन्होंने मीटर्स लगाए हुए हैं ना, वो अगर 500 लगे हुए हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो उसमें से 40 काम कर रहे हैं. और ड्रामे की नहीं रेटिंग आ रही, वो साबुन की और टूथपेस्ट की रेटिंग आ रही है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. देयर वाज अ टाइम there was no rating concept. हमें कॉन्शियसली ये काम करना चाहिए ना, हमें कॉन्शियसली काम करना चाहिए. बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा. बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. मैं तो पता नहीं इतने सालों से चीख रही हूँ कि बच्चों का चैनल खुदा के वास्ते जैसे आप मुझे बताइए, जबान और कल्चर हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. हम अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, हम उर्दू भी, चले हमारा हमारा मीडियम ऑफ एजुकेशन अंग्रेजी में भी है, लेकिन हमें अपना कल्चर और उर्दू को तो नहीं हम. जब बच्चे आपके खैर कहना शुरू करते हैं, खैर चलो कोई नहीं, ये मुझे ख्वाब आई थी, तो ख्वाब आई थी जब कहने लगते हैं ना, तो यू नो कि कुछ और ही देख रहे हैं ना. नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, आप दुनिया की 10,000 लैंग्वेजेस सीखें, बट आपको अपनी भी आनी चाहिए. अपने यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर एंड योर लैंग्वेज. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जब आप प्राइड नहीं लेंगे अपने मुल्क में, अपने उसमें, तो आगे कैसे चलेंगे? तभी तो मैंने प्राउड पाकिस्तानीज को अपने शो में बुलाया है, जो हर जगह जाते हैं, जिनको अंग्रेजी भी आती है और जबानें भी आती हैं और बड़े टैलेंट्स हैं, लेकिन दे आर प्राउड पाकिस्तानीज. और आप जैसे प्रेजेंट करती हैं दैट स्ट्रॉन्ग वुमन विद स्ट्रॉन्ग वुमन का ये मतलब नहीं है कि वो मारना शुरू कर दें, कि वो कंग फू करे. ओपिनियन एंड आप इवॉल्व्ड हैं एज अ ह्यूमन बीइंग. दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज उसी से आप सीखते हो, उसी से आप सिखाते हो, उसी से आप बढ़ते हो. बच्चों के लिए जो है ना, बच्चों के अंदर जो ये कॉन्फिडेंस अपने मुल्क में प्राइड लेने, क्योंकि उनको अंग्रेजी स्कूलों में डलाना होता है, हम खुद उसके हुए, तो हम बचपन से उनको इंग्लिश सिखाते हैं. एक्सेलेंट. आई थिंक लाइक यू से यू शुड स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. यू शुड बी एबल टू टॉक, कन्वर्स, एंड देयर सो मच यू कैन लर्न फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. लाइक यू सिटिंग इन हियर, यू लर्निंग सो मच फ्रॉम नहीं, हम सीख रहे हैं और हम दे भी रहे हैं, जिससे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं. बिल्कुल. आप कोई एकेडमी बनाने का भी कोई रखती है? बड़ा मुझे शौक हो रहा है. मुझे लगता है कि आप जब आप सारी इतने सालों से काम कर रहे होते हो ना, then it is time for you to give whatever you've learned to people, because वरना कुछ सिखाने वाला तो है ही नहीं. हमें तो यहाँ पे कोई भी नहीं सिखाता है. हमें ये सिखा दें कि क्या नहीं करना. ये भी बड़ा जरूरी है. एक स्कूल ऐसा भी होना चाहिए जो आपको बताए कि क्या नहीं करना. अब जो जनरेशन आ रही है ना मारिया, वो एक्टिंग की तरफ जो भी लोग बच्चे आ रहे हैं, तो मैंने देखा है कि वो एकेडमीज नहीं है, मतलब प्रॉब्ली स्कूल्स टाइप चीजें बना दी गई हैं, बट उसमें जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे ना, वो नहीं होगा. जब तक नहीं होगा, जब तक हम उनको ग्राउंड्स पे नहीं लेकर जाएंगे, उनको उस कॉम्प्लिकेशंस में से नहीं गुजारेंगे कि लाइट क्या होती है, मूव क्या होता है. आप पढ़ पढ़ के एक वक्त आता है कुछ नहीं आता. बुक लर्निंग प्रैक्टिकल लाइफ और बुक लर्निंग में बहुत डिफरेंस है. जितना भी, और लेकिन लोग वही आने चाहिए स्कूलों से, उस पे पढ़े लिखे बच्चे जो कि एज करियर लेना चाहते हैं, उसको फिर आप थोड़ा ग्रूम जो पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं वो एक्टिंग सीखे, जो अच्छे पॉलिटिशियन तो पाकिस्तान को बनना चाहते हैं वो एक्टिंग सीखे. मुझे रोक के रखा. हाँ प्लीज देखिए, हमें क्यों मत दे, हमें क्यों दे, फिर हम फंस जाएंगे, फिर हम बहुत नजर आ जाएंगे. उसके अंदर ऐसा ही होगा, तब्दीली ले आएंगे फिर हम. चलो इसी बात पे फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं. जुरैन, वी वांट टू टेक अ ब्रेक.
मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल कि मैं गाना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे आप लोगों के ऊपर तरस आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। नहीं, ये मेरा शौक हो सकता है, मेरा शौक हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है। तो कुछ शौक जो है ना वो अपने तक रखने चाहिए। आपके क्या शौक है जो अपने तक रखूं? अपने तक रखने वाले शौक पूछ रही है? वो भी बता दें, वो भी बता दें। शौक प्रूफ कोई शॉकिंग बात बता दें। गाने का बहुत शौक है, लेकिन गाना आता नहीं है, इसलिए गा नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। मुझसे अपनी आवाज ही बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो लहक लहक के गाने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेजेस बहुत खूबसूरत लगती हैं, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आई जस्ट यू लर्निंग स्पेनिश? आई एम लर्निंग स्पेनिश। अच्छा, फ्रेंच आपको आती है? French I used to teach at the Alliance, so I didn't know that. I did my diploma and my thing and everything in French. वो That's किया, amazing. फिर पढ़ाया, और फिर अब स्पेनिश सीखने का शौक हो रहा है, तो वो लेके आए, मतलब हाँ, स्टार्टिंग लेकिन हर एक नहीं लैंग्वेजेस सीख सकता है। लाइक आई कांट, एंड आई नो पीपल, काफी ऐसे लोग हैं जो एकदम पिक करते हैं, दे हैव दिस नैक कि उनको लैंग्वेजेस आ जाती मजा हैं। आता है, पता है, सो मच। ये इटालियन बोलते हैं, बैठे ना आपके पास। हाँ, आप तो you were born in Rome. Yes, I was Then born. what happened? Then I was born. Then you started speaking Italian. ये कैसे हुआ? नहीं, हम उसकी I तरफ have नहीं to जा call रहे, my mother तो ये हो first. गया। Okay. My parents were in Italy. They went for Rome University. Then they started. उन्होंने वहाँ पर फिर Chamber of Commerce और Export Promotion Bureau के साथ कोई affiliation हो गई. Then they started exporting footballs from here. Then they exported, imported you. And then they imported me. फिर मैं वहीं रहा. And for 17 years I was there. आपको फिर इसका मतलब इटालियन तो आती होगी। मैंने तो UAE में जॉब। अच्छा, इसको ऐसे रोल्स भी इसीलिए मिलते हैं ना, इटालियन माफिया टाइप माफिया टाइप। अच्छा 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 अच्छा। या और फिर मैंने UAE में जॉब भी की। I was a translator for Italian delegation. जितने हाई कमीशंस आते थे, I used to translate and actually take them for Very tours. interesting. Yeah. तो ट्रैवलिंग का मुझे भी एक कॉमन चीज है हमारी कि मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। हाँ, और आप तो सफर करते भी रहते हैं ना, उर्दू अंग्रेजी दोनों का। दोनों सफर होते रहते हैं। दोनों सफर अब किए हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो ये बोल रही होंगी, ये बोल रही होंगी, टर्किश टर्किश बोल रही कोई होंगी। पता नहीं, क्योंकि जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो इतना कुछ आपको पता चलता है। जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर कौन सी जबान है जिसके लफ्ज नहीं है? बिल्कुल, When it हर comes जबान। to Even Italian लश्करी भी है। जबान है ना? Even Italian भी है। अलमारी को अलमादियो कहते हैं वहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लफ्ज आसान हो जाता है, और फिर यू कैन लर्न अबाउट उनकी तहजीब एंड कल्चर, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। इट्स लाइक रियली, आई मीन इतना कल्चर एक अलग ही सफर है, एक अलग विंडो ओपन हो जाती है। तो आई थिंक ये लैंग्वेजेस सीखना और ट्रैवल करना, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। मुझे ट्रैवल शो करना है। अच्छा, आपने क्या क्या करना है? आपने बच्चों के लिए प्रोग्राम्स भी करने हैं, आपने ट्रैवल शो भी करना है, आपने लैंग्वेजेस भी सीखनी है, बट यू नो लाइफ को और फॉलो होना सबसे चाहिए। बड़ा जो काम करना है वो फ्लाइट पकड़ लिए वापस की। वो नहीं हम आपको पकड़ने दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं पकड़ने दे रहे। सो बट यू हैड अ ब्रश विद जर्नलिज्म ना? जर्नलिज्म भी started my career with journalism. I used to write for different women's magazine. She के लिए लिखती थी, Women's Zone के लिए लिखती थी, क्रिकेट के ऊपर लिखती थी बहुत, मैं क्रिकेटर के लिए लिखती थी। So you know, क्रिकेटर को तो नहीं लिखती थी। नहीं, के लिए लिखती थी। के और को में बहुत फर्क होता है। पता कर लूंगी, शायद कभी किसी क्रिकेटर को भी लिखा हो। के लिए लिखती थी। But a lot of things में मजा आता है। I think life should be full of things to do. अगर बैठा दो ना आप, तो फिर आप you die. So you have to be doing एक चीज को आपको फोकस करके, उसका करियर, आपको जो चीज वो हो, but there should be things. If you're not doing that, you should be doing something or the other. You know. नहीं, वो traveling कहते is हैं the ना, best education. वो कहते हैं कि हाँ, ट्रैवल से तो आता है, बट वो कहते हैं ना कि मास्टर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। मैं नहीं बिलीव करती है। अब मैं भी हर नहीं चीज करता। आप बिल्कुल करके देखते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों में ना कोई एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं टू लर्न मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आपको आती हैं चीजें। वही मैं कहता हूँ, हर चीज को कमर्शियल ना करें। मतलब पर्सनल प्लेजर के लिए, पर्सनल प्लेजर के लिए कुछ चीजें होती हैं, तो वो जरूर करें आप। And if you get paid for something you love doing yes. anyways, I think that is a huge blessing. बहुत अच्छी बात है ना, मतलब we've been very fortunate कि हमें ये मौका मिला है। I think that's excellent. यही सवाल अगर मारिया से पूछे, मारिया आपके क्या हॉबीज है? अच्छा, आप यहाँ पे, ये मेरी हॉबी है, टू मीट यू नो अमेजिंग पीपल, और उनको एंटरटेन करना, और उनको बॉस्फोरस की सैर कराना। दिस इज माय हॉबी नाउ। हाउ अबाउट दैट? वेरी नाइस। ये हॉबी आपकी याद रहेगी हमें पूरी जिंदगी। अब आपको बुलाते रहेंगे, ऐसी बात नहीं। आपका स्केड्यूल आप दोनों का आई नो कि टफ होता है, क्योंकि आई नो आई एम पार्ट ऑफ दिस। तो हाउ डू यू मैनेज इट? आई मीन families and work and hobbies and travel. I mean,
क्या है इसका? I think balance करना फॉर्मूला है, बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस क्योंकि लाइक अगर आपका प्रोजेक्ट होता है तो यू गिव योर फुल टू द प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट का फॉर्चुनेटली होता है कि जी 35-40 डेज में आपका एटलीस्ट शूट खत्म हो जाता है, देन यू टेक अ ब्रेक, देन यू स्पेंड दैट टाइम बिकॉज यू ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी के बच्चों से दूर हैं, तो आप वो टाइम उनके साथ करते हो, एंड देन यू नो बीच बीच में से आपको इस तरह मौके मिलते रहते हैं। मैं कहती हूँ जिंदगी बहुत छोटी है, एंड एज द ओल्डर यू ग्रो यू फील द जिंदगी और छोटी होगी, सो यू फील लाइक यू नो आपको होता है कि ज्यादा कर जिंदगी में जो वो है। एंड आई थिंक बेसिक ये होता है कि अपने पैशन के लिए करना चाहिए, मतलब पैसे के लिए, यस पैसे किसको नहीं पसंद, बट दैट शुड नॉट बी योर एक्चुअल एम कि जी इतने पैसे होंगे तो मैं मुझे मेरा पर्सनली है कि आई लाइक टू डू लाइक इफ आई लाइक अ प्रोजेक्ट आई वांट टू पिक इट अप एंड डू इट, यू नो वो चीज मुझे मतलब, और मुझे पता है कि मैं किसको शौक से उस चीज से करूंगी, अच्छी नियत से करूंगी तो बाकी चीजें विल फॉल इनटू। खुल के तारीफ करते हैं आप लोग या उसमें कंजूस है? सच बोलना है। आप बताइए। मैं तो बहुत तारीफ करती हूँ शमून, मैं लड़कियों की नहीं कह रही हूँ मैं जनरली कह रही हूँ किसी का काम अच्छा हो जी जी, या किसी का काम वाकई अच्छा लगे या कोई भी चीज मैं करता हूँ। मैं तो फोन करके बकायदा, अगर मैं जानता नहीं भी हूँ तो मैं फोन करके भी लोगों की तारीफ करते हैं आप ऐसा? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरी किसी ने कभी तारीफ की थी तो मैं यहाँ पहुंचा, तो मुझे लगता है कि अब जो स्पेशली जो लड़के हैं, लड़कियों की तो तारीफें होती रहती हैं, लड़कों को बहुत पीछे रखा जाता है, अच्छा कर भी रहे होते हैं तो उनको वैल्यू नहीं दी जाती इतनी, क्या ठीक है तुमने सही किया बस अगला शॉट दो, बट आई स्टॉप। खास तौर पे जो मेरे साथ जूनियर लड़के अटैच होते हैं मूवीज में या कहीं पे, उनको इनकरेज करते हैं, तो इनको इनकरेज करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बिकॉज उनके अंदर वो जो स्पार्क है उसी दिन आप डाल देते हैं, और मुझे वो 3 साल बाद मिलते हैं, वो कहते हैं शमून भाई दैट डे वर्क फॉर मी। जैसे मैंने दानिश तैमूर को एक दिन कहा था कि 4 साल पहले मैंने उसको देखा एंड आई वाज वर्किंग विद हिम एंड वन डे आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम एंड आई कहा यू विल गो टू मूवीज एंड ही वाज लाइक रियली, मैंने कहा यस यू विल गो, तुम देखना, यू शुड बी इन द मूवीज। एंड जिस दिन जलेबी आई है उस दिन उसका खास तौर पे मेरे पास फोन आया कि मैं कार्ड लेकर पर्सनली आ रहा हूँ आपके पास, मैं यार किसी चैनल से नहीं भिजवाऊंगा, मैं खुद आऊंगा, और मैं क्योंकि आपने उस दिन मुझे ये बात कही थी, तो आई हैव इंट्रोड्यूस नीलम मुनीर, विनेश, मोहेब, टीपू, इन सबको मैंने इंट्रोड्यूस किया। इन अ वे हुमायूं सईद ने भी पहला जो काम किया था वाज विद मी, इट वाज माय ओन स्टोरी। अच्छा। हाँ, एंड इट वाज विद मी। तो मुझे लगता है कि इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है, और वो एक वक्त सही वक्त पे वो जो एक थाफी है ना, ये इनकरेजमेंट का लफ्ज है, इट टेक्स यू अ लॉन्ग वे। तो आई थिंक हमें इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए और लोगों को व्हाट आर योर लेट मी आस्क दिस, क्या है एक अपना जो एक कोई नेगेटिव पॉइंट या जो कमी या डिसएडवांटेज जो अपना लगता है अपनी पर्सनालिटी में या अपने कैरेक्टर में लगता है, वीकनेस आई वुड से? गुस्सा जल्दी आ जाता है, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट फौरन, डर के रहना चाहिए भाई। हाँ मुझे आ जाता है, लेकिन मैंने आपको सेट्स पे ऐसे नहीं देखा, हमने ये हुआ तुमने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया ना, तुमने ऐसा काम नहीं किया ना कि इसमें गुस्सा है। व्हाट अबाउट यू? हाँ गुस्सा एक ऐसी चीज है जो, हाँ गुस्सा है, और झूठ का जो एक एलिमेंट है ना वो मुझे बहुत वो देता है, और अपने हमारे काम में एक प्रॉब्लम ये भी बहुत है कि मिसकमिटमेंट्स का एक बड़ा सिलसिला है। मैं बड़ा अप टू डेट रहने वाला और रखने वाला आदमी हूँ। मैं एक दफा कॉल करके अगर मैं खुद से बता रहा हूँ कोई बात जो आपको पूछनी चाहिए थी, तो आई एक्सपेक्ट कि सामने वाला फिर मुझे कॉल करके उसको उसी तरह एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे ये होता है कि थोड़ा सा ना ये जो हमारे कम्युनिकेशन गैप्स हैं, ये हमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें ग्रूमिंग की बहुत जरूरत है, ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग बहुत जरूरी है, एजुकेशन है बेसिकली कि हम कम्युनिकेट नहीं, ऐसा लगता है इसे बात करके छोड़ दिया तो एक हफ्ता पुरानी हो गई है वो बात। वी नीड टू स्टे इन टच, कि जब आपने एक बात कर दी तो दैट इज कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है, योर वर्ड शुड बी आइडियली दैट शुड बी इट, ये नहीं हुआ करता। और बड़े आप ममालिक में देखें जहां पर प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जहां पर डेवलपमेंट बहुत स्पीड में हो रही है, दे कंसेक्यूटिवली एंड कॉन्स्टेंटली स्टे इन टच विद यू। आप एक वक्त आता है तंग आ जाते हैं यार इतनी दफा क्यों, बस कर दो भाई, बस कर दो। बट पता चलता है कि गोरा जो है वो फॉलो अप पे बहुत बिलीव करता है, डबल चेक एंड फॉलो अप्स एंड कीपिंग दैट थिंग अलाइव इन यू, तो दैट डजंट हैपन एंड दैट इज। इधर से खुशबू नहीं आ रही है मुझे तो आना शुरू हो गया। मैं तो सोच रही थी कि कुर्सी ऐसे ऐसे किस बात के, मुझे ये लगता है हम जा रहे हैं मरियम के पास देखने के व्हाट इज शी डूइंग। ओके यस, are we all going? Yes, why not? I would love to go there. Okay, Welcome. Okay. see we all came. What we have here? Wow. हाँ. Wow. Okay. Mariam, show us. Let me show you. This okay. इतनी अच्छी खुशबू है मिसबाह. These are herby chicken. Herb chicken. Yeah, Okay. herb chicken, which we first fried in the butter and then. पहले हमने इसको फ्राई किया है बटर में,
ये हम आपको प्रॉपर इसका रेसिपी वगैरह भी बताएंगे, लेकिन मैं साथ साथ जो मरियम कह रही है उसको बस आपको बता रही हूँ कि पहले इसको फ्राई किया है हमने बटर के अंदर, और उसके बाद then what did we do? Then we put inside the water which we add before herbs like black pepper, fresh thyme, fresh oregons, and some muscat, nutmegs we added, and some ginger we put it inside on it. Okay. उसके बाद हमने herbs वाला जो पानी है उसके अंदर इसको boil किया है, और वो herbs भी हम आपको ingredients सारे बता देंगे. And it is ready. How long did it? 20 minutes. 20-25 minutes. इसको हमने boil किया, and this is very easy. So ये तो मेरी बात सुने, खवातीन अगर ये dishes आ गई तो वो क्या कहेंगी कि हम तो सारे दिन हांडी रोटी करते रहते हैं, तो that is not going to happen. You know, बस so इसमें quick. हमें कोई 1 किलो मिर्ची डालनी पड़ेंगी अगर शौहरों को खुश करना है. या लगानी पड़ेगी. वो तो लगी जाएंगी बगैर. All right, this looks very good, and this is couscous. This is couscous, and we cook the couscous with the water of the chicken. Okay. It's the important point. couscous को हमने जो chicken broth जो पानी था इसका chicken broth उसके अंदर किया है, तो उसमें उसका फिर flavor आएगा. Okay. We took all the flavor from the chicken and put inside the couscous. Couscous is supposed to be very healthy. Yeah, exactly. But Better than rice. Better than rice because sugar is less in the couscous, you know. couscous में कहते हैं कि sugar जो है वो कम है, इसलिए शायद ये राइस यानी चावलों से बेहतर है खाने में. और But starch भी नहीं also, होगा. you can use this recipe for the rice. It will also works very nice. Okay. And when I'm serving, प्रेजेंटेशन भी तो बहुत मैटर करती है ना कि दिल चाहे खाने को. दिल चाह रहा है खाने को. बिल्कुल चाह रहा है, और हम खिलाएंगे, आपके लिए बनवाया है. also the vegetables, especially carrots, are cooked inside the chicken with the chicken. In this one? Yes. in Okay. this one. जो carrots हैं, and the other vegetables And the as well? peas The peas, also. corn. Corns are boiled before. That's why Okay. we didn't add anymore. तो peas और यानी कि जो मटर है और गाजर, वो हमने जब चिकन ये ब्रॉथ है इसी के अंदर हमने इसको कुक किया है. And to give a golden color, we add some curry inside of it. Curry. इसमें curry ऐड किए कलर के लिए. Okay. This looks really good. Really beautiful. Yummy. Are you guys hungry? Yeah. You're not getting any till we hear a good song. You need to हमें गाना sing सुनना 20 पड़ेगा. songs for lunch. No, one will do. Okay. This looks yummy. Wow. Yummy and so मरियम easy. को तो हम लेकर जा रहे हैं फिर. हाँ? आप ले जाएं चले इसको. पैक करें. हाँ जी. पैक कराएंगे मरियम को. And what about this? Mariam, we're taking you to Pakistan. That's parsley Mariam. Parsley and thyme. and Thyme. Thyme, oregano. वो गाना था ना? कौन सा? कौन सा? Parsley and thyme. वो कौन सा पुराना हॉलीवुड का अच्छा. गाना? भूल गया. अभी तो सिर्फ खाना याद है. अभी खाना याद है. And look at this. Okay. And here is parfait. We told before we mixed all the ingredients. What is Yogurt. This is the sugar. biscuit? Yeah, it's just crushed biscuit. Crushed biscuit. If you like, you can add some chocolate chips inside on it. Okay. To So make this it more is the flavor. first layer. पहली layer जो है बिस्किट की है, crushed biscuit. उसके ऊपर then what is this? We have yogurt, cream, sugar, some crushed biscuits, and some coffee inside of it. Okay. जो the thing we made, जो इसने बनाई थी with yogurt and everything, वो इसके ऊपर है. And then what is this green thing? Pistachio. Oh, piste. You can change whatever you want. Almonds you can put भी inside. खाना है. बादाम डाल ले, Fresh पिस्ते. fruits. मुझे तो वो भी Yeah. बादाम डाल ले, पिस्ते डाल ले, और उसके पास strawberry है, and then the biscuit again. And then आपने इसको फ्रिज में रख दिया for 2 hours. 2 hours approximately. 2 hours. It's ready. Wow. Okay. आप ये रेसिपी जरा नोट करें and then come back to us. वेजिटेबल कुस्कुस, अज्जा, पास्ता 2 कप, मक्खन 2 खाने के चम्मच, मुर्गी की यखनी 3 कप, गाजर 1 अदद, मटर 1 कप, मकई आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, कड़ी पाउडर 1 चाय का चम्मच। तरकीब: सबसे पहले मक्खन में पास्ता डालकर गोल्डन रंग आने तक पकाइए और इसके बाद इसमें तमाम अज्जा शामिल करके 15 मिनट तक पकाइए और गर्मा गर्म सर्व करें। कॉफी पॉरफे, अज्जा, दही 2 कप, फेंटी हुई क्रीम 1 कप, पिसी हुई चीनी 1 कप, कॉफी 1 खाने का चम्मच, गर्म पानी 3 खाने के चम्मच, कोको बिस्किट 10 अदद, पिस्ता गार्निश के लिए, स्ट्रॉबेरी गार्निश के लिए।
तरकीब, बिस्किट के अलावा तमाम अज़ा को मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको सर्विंग डिश में डालकर ऊपर क्रश बिस्किट और फिर पिस्ता और स्ट्रॉबेरी डाल दें। मजेदार कॉफी परफेक्ट तैयार है। जी, आई होप आपने ये डिश बनाने का तरीका और उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे एंड आई होप कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और आपको पसंद भी आएगी। अगर आप कोई डिश सीखना चाहते हो तो आप हमें लिख के भेजें, मरियम आपको बनाना सिखाएंगी। हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त एक सेगमेंट का वक्त हो रहा है। पाकिस्तान में सदफ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वॉक्स ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वॉक्स ऑफ पाकिस्तान से मैं हूँ सदफ दुरानी। आपने ये तो सुना होगा कि हाथों की लकीरें किस्मत का हाल बताती हैं, लेकिन कभी कभी हमारी हाथों की सजावट हमारी शख्सियत का तारुफ भी बन जाती है। आपके लिपस्टिक, आपके नेल पॉलिश सिर्फ मेकअप नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है जिससे आपके एटीट्यूड का पता चलता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने हाथों को सजाकर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी जाती है। चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ हाथों की खूबसूरती कितनी ज़रूरी है, ये तो पूछते हैं ख़वातीन से। उनका क्या कहना है नेल आर्ट के बारे में। चेहरे के साथ साथ ये भी लगता है कि हाथों पर तवज्जो दी है, जो कि मोस्टली हमारी बहुत सारी ख़वातीन नेग्लेक्ट कर जाती है। हमें अपने चेहरे के साथ साथ अपने हाथों का भी ख्याल रखना चाहिए। पुराने ज़माने में भी तरीका थोड़ा मेहंदी के स्टाइल से फ़र्क था और आजकल बंदे खुद ही वो बच्चियाँ करवा रही हैं नेल आर्ट, लेकिन पहले भी हाथों की खूबसूरती के लिए किया जाता था, अब भी हाथों की खूबसूरती के लिए किया जाता है। चेहरे के साथ साथ हाथों की खूबसूरती बहुत ज़रूरी है। बर्थडेज हों, शादियाँ हों, कुछ भी हो, नेल आर्ट बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वैसे भी आजकल बहुत अच्छा भी लगता है और ज़रूरी नहीं है कि हमारी सिर्फ चेहरे की खूबसूरती हो, उसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपने हाथों को भी खूबसूरत रखें, क्योंकि एक इंसान की पर्सनैलिटी उसके हाथ पाँव से ही पता चलती है। अब मेरे साथ यहाँ पे नेल बार की सीईओ अनीशा मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे, पूछते ही हमें क्या बताती हैं दी नेल बार के बारे में। जी अनीशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम टू नेल बार। थैंक यू सो मच। अनीशा, नेल बार का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कहाँ से आया? एक्चुअली नेल बार की बेसिक जो ट्रेनिंग थी, जो नेल्स हम करते हैं यहाँ पे, कनाडा से ली थी। वहाँ से जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे कोई नेल्स का कोई ऐसा सेपरेट सैलून या कोई ऐसा कोई है ही नहीं। सो इनिशियली बेसिकली मैंने इसका स्टार्ट किया था फ्रॉम माई हाउस। तो इतनी ज़्यादा माशाल्लाह इसका रिस्पॉन्स आया था, लोगों की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी थी कि आज मतलब आई एम सिटिंग इन टॉप 2 एरियाज़ इन लाहौर और पीपल आर लविंग इट एंड दे लविंग आवर वर्क माशाल्लाह। अनीशा, ये बताइएगा क्या नेल आर्ट का कोई मौसम के साथ, आपके ड्रेस के साथ कोई ताल्लुक़ है? नेल आर्ट की एंडलेस वैरायटी है एंड एवरी डे एवरी नाउ एंड देन नया कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है। जिस तरह थोड़ा टाइम पहले नमाज वाली हलाल नेल पॉलिशेस आउट हुई थी कि आप वो भी डिफरेंट वैरायटी में है कि आप पील ऑफ कर लो, या उसमें वज़ू कुछ आई थी जिनमें वज़ू पानी सी गो थ्रू हो जाता है। और वैसे नेल आर्ट में ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रिंटिंग। अब डिजिटल प्रिंटर्स आए हुए हैं, वैसे थोड़े से ओल्ड हो गए हैं, लेकिन फॉर आवर कंट्री इट्स स्टिल न्यू। उसमें यह है कि आप अपनी पिक्चर खींच के उसी वक्त कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करें, हाथ रखें प्रिंटर पे, आपके नेल्स पे प्रिंट हो जाएगा। बाकी के ह्यूज वैरायटी, एंडलेस। कुछ भी आपने आज ये प्रिंट पहना, आप हमारे पास आई, मुझे इससे कुछ मिलता जुलता कर दें। जो घर से यानी सैलून्स या इस तरह नहीं आ सकती ड्यू टू एनी रीजंस, अपने आई वुड जस्ट से कि अपने हाथों को जब भी आप वॉश करें ज़रूर मॉइस्चराइज़ करें या रात को करें। रीज़न ये है कि बहुत सारे जिनको ब्लैक यहाँ से एजेस या क्यूटिकल्स ब्लैक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, तो दे इवेंचुअली स्टार्ट टर्निंग डार्क जब वो ड्राइनेस में रहते हैं।
और आप मैनिक्योर भी नहीं कराते या पेडिक्योर भी नहीं कराते, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनिक्योर एंड पेडिक्योर भी यही है कि आपकी डेड स्किन उतर जाए। नहीं उतरेगी तो इवेंचुअली वो डार्क होती जाएगी। मॉइस्चराइजिंग किसी भी घर पे ऑलिव ऑयल हो, कोई भी बेबी क्रीम, एनीथिंग, आप उसको मॉइस्चराइज करें पाँव और हाथ दोनों। आज के सेगमेंट से मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपना नेल आर्ट कराऊं। नेक्स्ट सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह किसी नए इवेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि मैं आपकी बात सुन रही थी कि आजकल सोशल मीडिया, टेलीफोन, मोबाइल्स, हम हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं। ज़रूरत भी है, आजकल के ज़माना ऐसा है दैट इंफॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। सिंपलर टाइम्स थे अभी कुछ साल पहले, वन डेकेड, 10 साल 10-15 साल पहले वो घर में एक ही फ़ोन होता था, मोबाइल्स आने से पहले। सो डोंट यू थिंक कि इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन उससे डिस्कनेक्शन भी ज़रूरी है? मैंने तो जी अपना फेसबुक अकाउंट, अपना व्हाट्सएप सब डीएक्टिवेट कर दिया एंड सडनली मेरे दोस्त बड़े परेशान थे कि जी कैसे। मैंने कहा कि मैं आई डोंट वांट टू फील कि क्या होता है, व्हाट डू आई मिस, क्या जिंदगी बंद हो जाती है अगर एंड ट्रस्ट मी 60% ऑफ माय लाइफ केम बैक टू मी। It was like now life is calling me now. Okay, let's go there, let's go do. It's just a gadget, एक मोबाइल है, but you're always engaged in looking for क्या हो रहा है. It's addictive. और बच्चों के लिए खास तौर पर because I have 2 children that are like एक के A level finals हो रहे हैं, दूसरे के O levels. Like मुझे constant रहता है और constantly वो फोन पे जब होते हैं ना, तो अब लेकिन कभी-कभी मैं फोन पे होते हैं, मैं डांट रही होती हूँ, मैं कहती हूँ क्या कर रहे हो, don't talk, but he's studying. So I'm like, okay, fine. Everything is on the net, so it's coming on this thing. So instead of the book, you're studying on the thing. हाँ, ये भी advantage भी है. हाँ, advantage भी है. दूसरा मुझे लगता है कि because हमारे मुल्क के जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो भी हमें बच्चों को इन टच रहने के लिए भी आई थिंक पेरेंट्स ज्यादा करते हैं, लेकिन मतलब बैलेंस की बात है ना हमारी, हर वक्त हर चीज में बच्चों के साथ आप कैसे बैलेंस रखेंगे? वो तो गेम खेलेंगे, वो तो मिसयूज करेंगे क्योंकि उनकी वो एज है। अगर उनको ये सब कुछ आ जाए तो फिर हम क्यों बताने के लिए उनको। लेकिन हमारे लिए भी अच्छा है बिकॉज लाइक आई हैव कनेक्टेड विद माय स्कूल फ्रेंड्स जिनको जिंदगी भर उनको मुझे पता ही नहीं था, सडनली दे आर ऑल माय यू नो, सो दैट इज एडवांटेज भी है। बट मैंने तो जितने लोगों से कनेक्ट जिंदगी में होना था होके उनके नंबर्स ले लिए। अच्छा, अब मैं कहता हूँ एसएमएस करो, ठीक है, कॉल मी, आई विल कॉल यू एंड लेट्स सी इफ लाइफ इज सो मच डिफरेंट विदाउट फेसबुक। क्या होता है, मुझे ये लगता है कि जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो सडनली आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है और आप और चीजें सोचने लगते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ, फेसबुक पे या ट्विटर पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें कोई नई बात नहीं है। जो आप पढ़ ली है वो मैं पढ़ रहा हूँ, जो ये पढ़ ली है वो आप पढ़ ली हैं, तो उसका मतलब ये कि कॉमन ही बात है ना। इफ यू वांट टू स्टडी और एजुकेट योरसेल्फ इनटू समथिंग डिफरेंट देन इट कांट बी फेसबुक, it can be the internet but not Facebook. You should search other sites where you can educate yourself or research about something because Facebook पर तो it's a common news. you know, वहाँ ये हो गया तो वहाँ तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर किसी वीडियो को हमने देखा है तो वो 5000 लोगों ने एक दिन में देख लिया है, so what's new about it? ठीक है, fine, you're getting to know things, but पर्सनली मैं Facebook को बुरा नहीं कहता, मैं खुद यूजर हूँ और मेरा खुद एक एडमिन था, बट मुझे लगा कि ज्यादा हो रहा है। बैलेंस की बात जो आप कह रही हैं, बिल्कुल बैलेंस की, बिकॉज़ आई थिंक होना भी वो तो है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुड बी एवरीवेयर, फैसिलिटी है आपके पास। जैसे वहाँ पे भाई आपने बंद कर दिया, सर्टेन साइट्स बंद करवा दी, मैं तो कहती हूँ क्यों करवाई आपने,
It's up to you. You have to decide whether it's good for you. Go. तो वो आपको choice रहनी चाहिए. वही सब कुछ आपके पास इंटरनेट पे और बाकी जगहों पे अवेलेबल है. तो बेसिकली हमें वो फहम और वो अकल होनी चाहिए कि किस चीज को मिसयूज नहीं करना और किस चीज को किस तरीके से यूज करना. एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, जो बड़ा क्रूशली हमारे मुल्क में ना एक कंडीशनलाइज्ड जो खर्चा हम पे डाल दिया गया ना कि हमें फोन है तो वही लेना है और हमें उसका मॉडल अब वो चेंज, उसमें एस लग गया है तो उसमें ए लग गया है तो उसमें बी लग गया है. इट्स ऑल द सेम. हम लाखों रुपए के, जब पाकिस्तान जैसे हालात में जहां लोग भूखे भी मर रहे हैं, थोड़ा सा हम ये भी सोचें कि यार ठीक है, आई कैन अफोर्ड एक्चुअली 3 ऑफ दीज फोन्स, तो आई कैन बाय 1. बट आप एक ही अफोर्ड कर सकते हैं और एक ही लेके आप अपने आप को भी खाली कर लेते हैं, फिर कल को वो छिन जाता है, चोरी हो जाता है. मैं कहता हूँ थोड़ा सा चैरिटीज की तरफ भी थोड़ा सा हम सोचें कि यार ये चलो 20,000 रुपए, हम 10,000 रुपए किसी फैमिली को, 15,000 रुपए किसी को, कोई मैं नहीं कहता कोई अमाउंट, बट एक चैरिटी का सिलसिला खत्म हो गया बिकॉज हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत हो गए, ब्रांडेड हो गए, हम ब्रांडेड हो गए. एंड ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द पीपल आई मीट, I mean, they have an iPhone, but they hardly know how to use it. But it's just because it's like a statement, ना कि जी you have it, I have it. अरे ये लिया तो तुम्हारे पास नहीं है. अच्छा, हर चीज का तो ब्रांड निकल आया है. तो कंडीशनलाइज्ड जो एक दुनिया में चीजें फिट कर दी गई है ना, उससे भी मैं दूर रहता हूँ. बच्चों को कैसे, क्योंकि आजकल I've seen जो बच्चे हैं वो तो आप अगर आपके बच्चे के फ्रेंड के पास, स्कूल फेलो के पास कुछ है तो वो obviously you should have it. वो कॉन्फिडेंस बच्चों में कैसे डेवलप करेंगे? Now this is आप पहले अपने अंदर करें. घर से याद है, like वो पहले आप खुद करेंगे. I'm not brand conscious. I mean, yeah, I have a phone, certain phone, whatever, you know, like वो चीज है. But मतलब मेरा ये नहीं होता कि जब लेटेस्ट आया है तो जी लेटेस्ट चाहिए. एक होता है कि जी आपके पास है, if you can afford it, great, keep it. You know, मतलब just for if you're enjoying it, keep it. देखिए बच्चे तो और अपने फेलो स्टूडेंट्स के पास देखते हैं ना कि उनके पास ये है, घर में संभालना पड़ता है ना. You have to tell them. अगर आप अपने एग्जांपल बन जाएंगे ना, आप खुद एक एग्जांपल बन जाए. I can afford like you know most expensive phones, but मेरे पास आप फोन देखेंगे तो मैंने देखा है कि मेरे फोन पे it costs hardly 25,000 मेरा फोन. It has everything. और मेरे सामने जो बड़े बड़े फोन वाले लोग होते हैं वो कहते हैं यार ये रख लो, मुझे ये दिला दो, तो मैंने अपने वाले को 6 बिकवा दिए और मैंने लोगों की बिलीफ चेंज जो भी रखे डिपेंड करता है उसमें फोन आ किसका रहा है. बिल्कुल. अच्छा, एक छोटी सी जरा अपने आप को, अपने रिफ्लेक्सेस चेक करने की एक छोटी सी गेम है. जस्ट यू नो नथिंग, यू नो मुश्किल काम नहीं है. मैं आपसे एक एक सवाल करूंगी लेकिन उसमें आपने हाँ, नहीं, जी इनका इस्तेमाल नहीं करना. हाँ, नहीं, जी. यू गो फर्स्ट. जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है? ओके. अच्छा, we'll start with Shubha. वैसे तो लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन तुमने इंट्रोड्यूस भी इनको किया पहले, आप उसको करो. अच्छा नहीं कर लो, I don't mind. अच्छा ठीक है, I'll start. शमून आपसे स्टार्ट करते हैं. हाँ, नहीं और जी का इस्तेमाल नहीं करना. ओके. क्या आप बीवी से झूठ बोलते हैं? मैं बीवी से झूठ बोलना गलत समझता हूँ. ओके. किसी की बीवी से झूठ बोलना उससे ठीक लगता है. ओके. क्या आप खाने के शौकीन हैं? मैं खाने का शौकीन हूँ. फेसबुक चेक की? फेसबुक कभी कभी चेक करता हूँ. ओके. स्विमिंग आती है आपको? मैं अच्छा स्विम कर लेता हूँ. अच्छा. और एक्सरसाइज करते हैं? रोज करता हूँ. कभी आपका चालान हुआ है? 3-4 बार हुआ है. पेट है आपके पास कोई? सॉरी? पेट है आपके पास कोई? मेरे इतना पास नहीं सोच सकते. मेरे पास एक बिल्ला है. स्मोकिंग करते हैं आप? गलत बात होती है स्मोकिंग करना. खबरें सुनते हैं? आज खबरें सुनी है? जो अच्छी लगती है मैं सुनता हूँ. ओके. स्टाइल कॉन्शियस हैं? स्टाइल होना चाहिए इंसान के अंदर. वेरी गुड. ओके. क्या आप अपनी उम्र छुपाती है? कभी कभी. अच्छा. मूडी है? हो सकता है. हो सकता है. सुबह, क्या आप सुबह देर से उठती हैं? कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठूं. शॉपिंग करने का शौक है? कभी कभी होता है. क्या घूमने फिरने की शौकीन है? ऐसे शौक मैंने पाले हुए. म्यूजिक लवर है? म्यूजिक तो हर किसी को सुनना चाहिए. आपको अपने हस्बैंड की बर्थडे याद है? भूलना मुश्किल है. गुड. क्या आपको गाना गाना आता है? कोशिश की है. नाकाम. नाकाम. क्या आपके आप घर में पूरा टाइम देती हैं?
वो भी कोशिश करती हूँ मैं। अच्छा, हर काम में कोशिश ही है। कोशिश और कभी कभी मिला के ना सारे जवाब दे। घर फोन किया था आज? टाइम मिलेगा तो कर लूंगी। वेरी गुड, वेरी रिफ्लेक्सेस आप दोनों के इस उम्र में भी ठीक है। क्या मतलब इस उम्र में? शो बंद करेंगे। भाई फिर तो गिफ्ट हैम्पर तुम्हारे पास एक था, आप किसको दे? नहीं we have gift hampers हमें मरियम के हाथ का खाना खिला देंगे तो हमारे हैम्पर पूरा हो जाएगा। कॉमन सेंस के बारे में क्या ख्याल है? कॉमन है? कॉमन सेंस अपने हर आदमी के अंदर अपने अंदर एक कॉमन बनाया हुआ है उसने ना कि मेरा अपना ये कॉमन है। मुझे लगता है कि कॉमन सेंस कॉमन नहीं है, नहीं सेंस ही हो जाए तो बहुत। अच्छा, डीलिंग विद सेट्स के ऊपर कमिंग टू फिल्म्स की तरफ मैं बात करना चाहती हूँ कि अब ना एक वो टाइम आ रहा है कि फिल्म्स बनना शुरू हो रही हैं बहुत अरसे के बाद। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तो कितने सालों से कह रही हूँ कि फिल्म्स होनी चाहिए। बिकॉज आप किसको कह रही हैं? मैं सारी दुनिया को कह रही हूँ, लेकिन किसी ने सुना नहीं अभी तक मुझे। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इट्स बिकॉज ये आपकी जो यंगर जनरेशन है मारिया, इतनी टैलेंटेड है, इतना इनमें मतलब जोश और जज्बा, और टेक्नोलॉजिकली दे आर सो फिट दैट इट्स रियली गुड कि सब लोग कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मैं तो कहती हूँ जहाँ जहाँ नाम आए ना तो बस हम उसी में खुश हैं। कोई अच्छे तरीके से आए, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से आए, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात जो पर्सनली इस वक्त फील कर रही हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। होनी चाहिए, आई मीन चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, रिवाइव होनी चाहिए, चेंज आना चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इंस्टेड ऑफ राइट नाउ, आई डोंट नो आप एग्री करेंगे कि नहीं, राइट नाउ मुझे लगता है कि हमें अपना जॉनरा और अपनी फिल्म डिस्कवर करनी है, किसी को फॉलो किए बगैर, किसी के आइटम नंबर डाले बगैर, किसी का ह्यूमर लिए बगैर, किसी की प्रॉब्लम्स अपनी स्क्रीन पर ट्रांसलेट किए बगैर। What is your take on that? अपना हमारा क्या है? मुझे लगता है कि जो इस वक्त एक बहुत बड़ा इंटरनल इशू चल रहा है ना, वो ये है कि जो फिल्म को बायर्स बन चुके हैं ना, जैसे ड्रामा बायर्स था, उसी तरह वो बायर, एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं आसमान से नहीं उतरा है, वो वही लोग हैं जो ड्रामे पहले खरीदते थे, आज उन्होंने फिल्में खरीदना शुरू कर दी, तो उन्होंने भी कंडीशंस लगा दी हैं, ये चीज़ रखोगे तो चलेगी, वो चीज़ फिल्म मेकिंग हमेशा से एक बहुत लिबरल एक स्किल का नाम है, एक बहुत खुली आज़ाद चीज़ है, ठीक है ना, उसमें हमें ये नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि हम दो बॉर्डर से मिले हुए हैं, एक बॉर्डर वो है जहाँ से आइटम नंबर आते हैं, एक बॉर्डर ईरान का भी है। अगर हम वहाँ से भी थोड़ा सा सीखें कि हमने बगैर सेटअप्स के, बगैर किसी चीज़ के कहानी, एक्टिंग, वो तो हमारा, आई फील कि वो हमारा ड्रामा था जो हम बड़ी स्क्रीन पर ट्रांसलेट नहीं कर सके, तो हमने ड्रामा बनाना शुरू कर दिया। उसके अंदर कैसा कैसा काम हुआ हुआ है, कैसी किसी स्क्रिप्ट, कैसा कैसा मसला डिस्कस हुआ हुआ है। मुझे नहीं लगता कि फ्रेंच या ईरानी सिनेमा या कोई और से पीछे रहा है सब्जेक्ट वाइज। बिल्कुल, और इट्स ब्यूटीफुल, हमें भी करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जहाँ जहाँ आप अपना कल्चर, फिल्म के थ्रू आप अपना कल्चर सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सारी दुनिया आपको जानती है कि आप पाकिस्तान की एक होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी। मैं आइडेंटिटी की इस वक्त, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं ये काम दोबारा, तो मैं ये समझती हूँ कि जरूर बनाएं, माफिया पे, इटालियन माफिया पे आप फिल्म बनाएं, या आप जिस पे मर्जी बनाएं, लेकिन आई फील कि इस वक्त हमें अपनी आइडेंटिटी, अब टेररिज्म से निकल आए, अदर थिंग्स। जब वार आई थी ना, तो हमें इंडिया के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने भी बाकायदा तारीफें की। राम गोपाल वर्मा का तो खास तौर पे फोन आया, आपने भी फोन किया था, बड़े बड़े लोगों ने फोन किया। राम गोपाल वर्मा की ट्वीट्स थी, तो उसका मतलब ये है कि आप अगर कोई बड़ा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो वो ग्लोबली पहचाना जाएगा, बिल्कुल जाएगा और देखा जाएगा। अब रह गई बात कल्चर की, तो फिल्म हमेशा मैं कहता हूँ कि ग्लोबल मीडियम है, और ग्लोबली जब तक आप नई फिल्म को बनाएंगे तो आप अपना कल्चर भी नहीं लेके जा सकते। पहले तो आप ग्लोबल होने की कोशिश करें, उस ग्लोबलनेस में फिर आप अपना कल्चर दिखाएं। हम क्या करते हैं, कल्चर पहले दिखाने के चक्रों में कि जी कल्चर ये कि जी आइटम नंबर होगा तो ये होगा, वो होगा। उसका थॉट क्या है उसके पीछे, और उसका सब्जेक्ट क्या है, वो चीज मैटर करती है। और एक और प्रॉब्लम है, एक जगह ना जनरल स्टोर खुल जाता है, वो चलने लगता है, तो साथ वाले 5 दुकानों में जनरल स्टोर ही खुल जाता है। फिर वो ये नहीं सोचते कि जनरल की बातें ना करें। ऐसी बातें ना करें। तो अब वो वॉर मूवीज बनी थी, तो वॉर बनी थी तो वैसी बनी, फिर वो एक कॉमेडी फिल्म आई, तो अब मैंने देखा 9 कॉमेडी फिल्म्स बन गई हैं। तो कोई एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी फिल्म बनाएंगे आप, क्या फिल्म बनाएंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट? माय सब्जेक्ट, अभी जो फिल्म हमारी बन रही है, इज अबाउट मीडिया
and how destructive media can be. मीडिया के खिलाफ कोई बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता. मेरी तो रोमांटिक है. अच्छा मैं शो बिजनेस की बात नहीं कर रहा. I'm talking about the news media. अच्छा, yours is a romantic. मैं तो रोमांस. मुझे तो लगता है कि रोमांस कभी खत्म नहीं होना चाहिए जिंदगी से. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. You know, सिर्फ मुझे वो अच्छे लगते हैं. Feel good रोमांस. मुझे लड़की का भाई बना दीजिएगा प्लीज. भाई? लड़की का भाई. कि मैं उस वो वाले रोल में बहुत अच्छा है क्योंकि मैं रोमांस नहीं कर पाता. पर्सनल लाइफ में रोमांस है मेरी? हाँ. नहीं इसलिए तो बाहर. मेरी? इसकी तो बहुत होगा. मेरी तो नहीं. क्यों नहीं? मियाँ बहुत अनरोमांटिक है. अच्छा. बता रही हूँ मैं ऑनर. तो इसलिए ये शिकायत की गई है भाई. हाँ, बहुत. और घर तक पहुँच जानी चाहिए. बहुत फौरन पहुँच जानी चाहिए. और बाकी मियाँ जो अनरोमांटिक है उनके लिए भी ये है कि ऐसे ना करें. ऐसे ना करें. थोड़ा सा रोमांस. वरना बीवियाँ फिल्म बनानी शुरू कर देंगी रोमांटिक. बिल्कुल दूसरों का रोमांस कराना शुरू कर देंगे. But I think and I want to show Pakistan. I want to shoot in पाकिस्तान. जब मेरी बारी आएगी तो मैं तो अपनी फिल्मी रोमांटिक फिल्म तो बनाऊंगी खूबसूरत सी पाकिस्तान में शूट करके showcasing my country. I love to do that. लेकिन somebody else you might want to do something else. He might want to make an Italian type of movie. So put all Italian उसके ऊपर क्यों डाल दिया है भाई? क्योंकि वो इटली में पैदा हुआ इसलिए. What happened? Why the Italian movie? I was born in Africa. मैं वहाँ चली जाऊँ. African movie बनाए. but ठीक है. मतलब basically what I mean is कि everybody should make the kind of movies they want to. Yeah, I was watching BBC News and there is this festival जो मोबाइल फोन्स पे उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं and they're amazing films. और वो अभी बकायदा उसका फेस्टिवल हो रहा है. एक प्रॉपर अवार्ड सेरेमनीज हो रही हैं. पॉकेट फिल्म्स हैं वो. एंड अब लोगों ने मोबाइल पे करने शुरू कर दिए बिकॉज अब आपके कैमरे हर काम आजकल तो मोबाइल पे हो रहा है. तो मुझे लेकिन गाना हम आपको लाइव सुनवाएंगे. हाँ जी, गाना सुन लेते हैं. जुरैन, sing a song for us before our guests leave us. Beautiful, that was a beautiful song. बहुत खूबसूरत गाना हमने आपको सुनाया. अब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. Stay with us. Da
back after the break. अब हम अपने शो के एंड की तरफ जा रहे हैं. हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है मैसेज इन अ बॉटल. आपने सुना होगा ना मैसेज इन अ बॉटल. ये बचपन से सुनते आए हैं कहानियां. सो इसमें ये है कि यू हैव टू राइट. आपने एक मैसेज, वो कुछ भी हो सकता है, वो शिकायत हो सकती है, वो मैसेज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो प्यार का इकरार हो सकता है, वो कोई तकाजा हो सकता है, वो कर्ज की वापसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. वो आपने मैसेज लिखना है किसी भी हमारे सेलिब्रिटी जो हमारे गेस्ट्स आएंगे उनके लिए, और ये हम सील कर देंगे और फिर हम उसको समंदर में फेंक देंगे. वाकई समंदर में फेंक? हाँ ना, वो हम समंदर में फेंक देंगे. फिर वो जो गेस्ट आएगा उसको भी समंदर में फेंक, वो बॉटल लेकर आएगा. मेरे ख्याल में तो आपके लिए एक मैसेज है वैसे. अच्छा है. एनीवे, सो आप इसके ऊपर मैसेज लिखें. आई एम वंडरिंग आप किसके लिए लिख रहे हैं? मैं हमायूं को दे रही हूँ. अच्छा, हमायूं के लिए भाई. मिसबाह हैज अ मैसेज फॉर हमायूं सईद. और शबून? इमरान अब्बास. इमरान अब्बास. ओके, मैं तो खुद बहुत क्यूरियस हूँ इस बात के बारे में. अब हमायूं विल कम ऑन आवर शो, और जब वो आएंगे तो मिसबाह का मैसेज हम हमायूं को देंगे, और जब इमरान अब्बास आएंगे तो शमून का मैसेज हम उनको देंगे. पता नहीं क्या तकाजे किए गए हैं, इसमें क्या राज अफशा होंगे. I have no idea. बंद कर दो, ये ना हो कि वो पढ़ के बोतल ना पानी में फेंक दे. वो बोतल किसी के सर पे ना मार दे. ठीक है जी. एंड यू हैव टू साइन अपनी अपनी बॉटल. अपनी बॉटल. अपनी अपना ही नाम लिखिएगा, पता चले ये मैसेज हो है मिसबाह के नाम. मिसबाह के नाम से. थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप हमारे शो पर आए. थैंक यू जी, आपका शुक्रिया जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरत मॉर्निंग शो में बुलाया. मेकिंग बच्चों के प्रोग्राम. मिसबाह के साथ मिसबाह वांट्स टू डू बच्चों के प्रोग्राम करना चाहती है, जिसकी बहुत कमी है हमारे मुल्क में. थैंक यू सो मच. दीज आर गिफ्ट हैम्पर्स फॉर यू. थैंक यू सो मच. एंड आई नो आपकी फ्लाइट है, इसलिए मैं आपको जल्दी जाने दे रही हूँ. Thank you. Thank you so much, Maria. Thank you, Jenny, for a great show and a lovely place. I mean, seriously. Best of luck. All right. Okay, Allah Hafiz. Take care. Bye. Bye. Have a safe flight. Thank you. जी viewers, अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ, क्लोजिंग की तरफ आ गए हैं. अगर आप कोई भी डिश बनाना सीखना चाहते हो तो हमारी शेफ मरियम यहाँ पे हैं, वो आपको बनाना सिखाएंगी. अगर कोई गाना सुनना चाहते हो तो हमारा ऑर्केस्ट्रा और हमारी सिंगर यहाँ पे मौजूद हैं. अगर किसी शख्सियत से हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप मिलना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिख कर भेजें. खुदा हाफिज़. Sunrise from Istanbul.